السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا سبق ہے لفظ۔ لفظ کیا شے ہے، لفظ کیا چیز ہے، آج اس کے متعلق بحث ہوگی انشاءاللہ۔ لفظ، سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ لفظ ہے کیا آخر۔ لفظ کہتے ہیں انسان کی زبان سے جو باتیں نکلے، انسان کی زبان سے جتنی باتیں نکلے ان تمام چیزوں کو لفظ کہتے ہیں۔ یعنی انسان جو بولتا ہے، جس طرح سے ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں یا پڑھا رہا ہوں، تو اس میں جتنی باتیں نکل رہی ہیں یہ سارے کے سارے لفظ ہیں۔ لہذا پتا چلا کہ لفظ کسے کہتے ہیں؟ انسان کی زبان سے جو باتیں نکلے، یہ اس کی تعریف ہے۔ لہذا لفظ، انسان کی زبان سے جو باتیں نکلے اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ اولاً پھر لفظ کی دو قسمیں بنتی ہیں، نمبر ایک موضوع، نمبر دو محمل۔ موضوع کہتے ہیں معنادار لفظ کو، یعنی جس کا کوئی معنی ہو۔ مثال کے طور پر قلم، قلم کہتے ہی انسان کے ذہن پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ قلم ایک چیز کا نام ہے جس سے لکھا جاتا ہے، تو فوراً یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ لہذا چونکہ وہ معنادار ہے، اس لیے ایسے لفظ جو معنادار ہو اسے موضوع کہا جاتا ہے۔ اور جو لفظ بے معنی ہو، جو لفظ بس ہر زبان کے اندر وہ لفظ بولا جاتا ہو، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، تو ایسے لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ یعنی محمل ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے جو بے معنی ہو۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ سے کہا کہ آپ نے کھانا اونا کھا لیا یا پانی اونی پی لیا، تو کھانا تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ کھانا ایک چیز کا نام ہے، لیکن اونا کیا چیز ہے؟ ایک آدمی فقط صرف اونا آ کر کہے کہ ہم نے اونا کھا لیا تو کوئی آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے، لیکن جب تک کھانا نہ کھانا کہہ دے تو پھر آدمی سمجھ جائے گا کہ کھانا ایک چیز کا نام ہے۔ تو کھانا کے ساتھ اونا جو استعمال ہوا، لہذا یہ اونا محمل ہے، اس کا کوئی معنی نہیں۔ چنانچہ محمل لفظ بس یہ ہر زبان کے اندر بولا جاتا ہے، اس سے کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ لفظ محمل بس یہ ایسے ہی بول دیا جاتا ہے، اس کا کوئی بحث نہیں، آگے اس کا کوئی اس سے بحث نہیں ہوتی ہے۔ بحث جو بھی ہوتا ہے لفظ موضوع سے ہوتا ہے، اس کا بحث یہی شروع میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب لفظ موضوع کا بحث شروع ہوتا ہے۔ لفظ موضوع جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوا معنادار لفظ کو کہا جاتا ہے۔ تو لفظ موضوع کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں، نمبر ایک مفرد، نمبر دو مرکب۔ مفرد کہتے ہیں تنہا لفظ کو، جیسے کسی نے کہا کتاب، قلم، تو اس سے ایک ہی لفظ چونکہ سمجھ میں آیا، اس لیے اس لفظ کو لفظ مفرد کہا جاتا ہے، یعنی تنہا لفظ۔ اور مرکب اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو دو لفظ سے مل کر بنے۔ یہاں مراد جو ہوتا ہے اکثر مرکب اضافی، مرکب توصیفی وغیرہ ہی مراد ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے بحث شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اس وقت چونکہ لفظ مفرد یہ بحث اول ہے، اس لیے لفظ مفرد پر بحث کیا جاتا ہے۔ اور مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے، یعنی مفرد ایک لفظ کو مفرد کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام بھی ہے، اس کا نام کلمہ ہے۔ اور پھر کلمہ کی تین قسمیں، نمبر ایک اسم، نمبر دو فعل، نمبر تین حرف۔ لیکن ان باتوں کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز اور سمجھ لیا جائے، وہ چیز کیا ہے؟ زمانہ۔ کیونکہ بغیر زمانے کو سمجھے ان تینوں چیزوں کو مکمل طور پر آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو زمانہ کو پہلے سمجھ لیا جائے تو یہاں نظر کیجئے، زمانہ کہتے ہیں وقت۔ یہ وقت جو گزرتا ہے، یہ وقت جو ہمارے ساتھ ہے، اس وقت کا نام ہی زمانہ ہے۔ بہرحال یہ آسان اس کا معنی ہے، زمانہ وقت کو کہا جاتا ہے۔ تو پھر زمانے کی بھی تین قسمیں، کتنی قسمیں؟ تین قسمیں۔ نمبر ایک ماضی، نمبر دو حال، نمبر تین مستقبل۔ ماضی کسے کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے زمانے کو، یعنی جو دن گزر گیا، جو وقت گزر گیا اسے ماضی کہا جاتا ہے۔ اور حال کسے کہا جاتا ہے؟ موجودہ زمانہ کو، جو وقت گزر رہا ہے، جیسا کہ میں ابھی پڑھا رہا ہوں۔ اور ماضی جیسا کہ اس نے کھانا کھا لیا۔ اور مستقبل کسے کہتے ہیں؟ آنے والے زمانے کو، آنے والے وقت کو مستقبل کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ کل انشاءاللہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز پڑھاؤں گا یا پڑھوں گا، تو یہ سارے آئندہ ہونے والی شے کو یا آئندہ ہونے والے کام کو مستقبل کہا جاتا ہے۔
आप समझ गए आसानी के तौर पर कि जमाना वक्त को कहा जाता है। और फिर जमाने की 3 किस्में हैं, नंबर 1 माजी, नंबर 2 हाल, नंबर 3 मुस्तकबिल। तो माजी कहते हैं गुजरे हुए जमाने को, और हाल मौजूदा, और मुस्तकबिल आने वाले जमाने को। अब यहां आइए, अब मौजू की 2 किस्में थे, उनमें से एक मुफरद, मुफरद का दूसरा नाम कलिमा है। कलिमा की 3 किस्में, नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फ़िल, नंबर 3 हर्फ। इसमें किसे कहते हैं, अब इस बात को समझना है। इसम की तारीफ यह है कि इसमें वो लफ्ज है जो दूसरे लफ्ज के मिलाए बगैर समझ में आ जाए, और उसके अंदर इन तीनों जमानों में से कोई जमाना ना पाया जाए। यानी इसमें वो लफ्ज है जो दूसरे लफ्ज के मिलाए बगैर समझ में आ जाए, और वो जमाने का मोहताज ना हो, यानी उसके अंदर जमाने की जरूरत ना हो, उसे लफ्ज कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आपके सामने कोई कहे कि मैं मदरसा से आया, मदरसा एक लफ्ज इसम है, फौरन आदमी समझ जाएगा कि मदरसा एक जगह का नाम है या एक पढ़ने की जगह है, ये बात फौरन समझ गए। लेकिन उसके अंदर कोई जमाना नहीं पाया गया कि उसमें माजी में मदरसा था या अभी मदरसा है या होगा, ऐसी कोई बात नहीं। मदरसा कहते ही, स्कूल कहते ही फौरन ये बात समझ में आ गई कि एक सब पढ़ने की चीज है, या मस्जिद या मकतब, इससे फौरन ये बात समझ में आ जाती है कि एक चीज का नाम है फकत। तो इसमें वो लफ्ज है जो दूसरे लफ्ज के मिलाए बगैर समझ में आ जाए और उसके अंदर कोई जमाना ना पाया जाए। ठीक इसी तरीके से फ़िल है, फ़िल में थोड़ा सा इस्म और फ़िल के अंदर थोड़ा सा फर्क है। फर्क यह है कि फ़िल वो लफ्ज है जो दूसरे लफ्ज के मिलाए बगैर समझ में आ जाए। जैसे इसमें के अंदर किसी दूसरे लफ्ज की जरूरत नहीं होती है, ठीक इसी तरह फ़िल के अंदर भी जरूरत नहीं होती है, यानी दूसरे लफ्ज के मिलाए बगैर ही वो फ़िल समझ में आ जाता है। लेकिन फ़िल के अंदर एक चीज यह है कि इसके अंदर इन तीनों जमानों में से कोई जमाना जरूर पाया जाएगा। मिसाल के तौर पर किसी ने कहा भाई पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, चल रहा है ये चीज फ़िल है, और चल रहा है तो समझ में आ गया कि पंखा घूम रहा है, चल रहा है। लेकिन उसके अंदर जमाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि चल रहा है ये फौरन समझ में आ गई कि ये अभी मौजूदा वक्त में चल रहा है। अगर यही कोई कहेगा कि पंखा चल रहा था तो फौरन ये बात जरूर समझ में आती है कि चल रहा था, ये काम गुजरे हुए वक्त में हुआ। और इसी तरीके से अगर आइंदा की बात चले कि पंखा चला दिया जाए तो फौरन ये बात समझ में आती है कि ये काम मुस्तकबिल यानी आइंदा वक्त में होने वाला है। लिहाजा फ़िल तो फौरन समझ में आ जाता है कि चलना ये चीज हमें फौरन समझ में आ गया। इसी तरह अगर जैद खाना खा रहा है, खाना तो समझ में आ गया कि वो खा रहा है, लेकिन उसके अंदर एक जमाना पाया जा रहा है, यानी बगैर जमाने के वो समझ में नहीं आएगी, यानी उसके अंदर खुद ब खुद ही जमाना ही पाया जाएगा। वो एक ऐसी चीज है। तो इसमें वो है जो दूसरे लफ्ज के मिलाए बगैर समझ में आ जाए, लेकिन उसके अंदर कोई जमाना न पाया जाए। और इसमें से फ़िल जो थोड़ा फर्क है वो ये है कि फ़िल वो लफ्ज है जो दूसरे लफ्ज के मिलाए बगैर समझ में आ जाए, लेकिन उसके अंदर तीनों जमानों में से कोई जमाना पाया जाए। इसमें ना पाया जाए, फ़िल में पाया जाए। अब आइए हर्फ की तरफ। हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ कहते हैं वो लफ्ज जो दूसरे लफ्ज के मिलाए बगैर समझ में ना आए। मिसाल के तौर पर से तक, ये लफ्ज जो है, ये हर्फ जो है, ये ऐसा है कि एक आदमी आके खड़े हो गया, उसको मैंने कहा या किसी ने कहा कि भाई आप कहां से आए, तो वो सिर्फ से करता रहे या तक करता रहे तो आदमी मुतकल्लिम उसकी बात को हरगिज समझ नहीं सकता जब तक कि वो ये ना कहे मैं आया घर से, या कहां जा रहे हो, जब तक ये ना कहा मैं मस्जिद तक जा रहा हूं या घर तक जा रहा हूं, जब तक ना बोल दे उस वक्त तक बात मुकम्मल नहीं हो सकती। लिहाजा हर्फ दूसरे लफ्ज के मोहताज होते हैं। तो पता चला इन तीन के अंदर तारीफ अलग अलग है। इसमें वो है जो दूसरे लफ्ज के बगैर समझ में आ जाए और उसके अंदर कोई जमाना ना पाया जाए, और फ़िल वो है जो दूसरे लफ्ज के मिलाए बगैर तो समझ में आ जाए, लेकिन उसके अंदर तीनों जमानों में से कोई जमाना पाया जाए। और हर्फ वो है जो दूसरे लफ्ज के मिलाए बगैर समझ में ही ना आए, जैसे से तक वगैरह। अब यहां
लफ्ज के बहस शुरू तो हुआ है और ये बहस चलता रहेगा। अब फिर इसम की किस्में होंगे, जिनसियत के एतबार से होंगे, तादाद के एतबार से होंगे, उमूम और खुसूस के एतबार से होंगे, फिर से बहस चलती रहेगी। बहरहाल आज सिर्फ का बहस सिर्फ लफ्ज था कि लफ्ज उसे कहा जाता है जो इंसान की जुबान से जो बातें निकले। उसकी अव्वलन दो किस्में हैं, लफ्ज मौजू, लफ्ज मुहमल। मौजू कहा जाता है मानादार लफ्ज को, और मुहमल बेमाना लफ्ज को। मुहमल से बहस नहीं होती है और मौजू से बहस शुरू होती है। फिर मौजू की दो किस्में, जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि एक मुफरद, दूसरा मुरक्कब। मुफरद लफ्ज तन्हा लफ्ज को कहा जाता है, मुरक्कब जिसमें दो लफ्ज हो उसे मुरक्कब कहा जाता है। फिर लफ्ज मुफरद का दूसरा नाम कलिमा है, और कलिमा की तीन किस्में हैं, इसम, फ़िल, हर्फ। फिर उसके अंदर जमाने की जरूरत पड़ी तो आप लोगों को जमाना भी समझाया गया कि जमाना वक्त को कहा जाता है। जमाने की तीन किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी कहते गुजरे हुए वक्त को, हाल कहते मौजूदा, और मुस्तकबिल कहते आने वाले जमाने को। फिर इसमें फिर हर तक की तारीफ आप लोगों को बताया। फिर एक मरतबा और सुन लीजिए, इसमें वो लफ्ज है जो दूसरे लफ्ज के मिलाए बगैर समझ में आ जाए और उसके अंदर कोई जमाना ना पाया जाए। फेल वो लफ्ज है कि जिसके जो दूसरे लफ्ज के मिलाए बगैर तो समझ में आ जाए मगर उसके अंदर कोई जमाना पाया जाए। और हर्फ वो है कि जो दूसरे लफ्ज के मिलाए बगैर समझ में ही ना आए, जैसे से, तक वगैरह। आज का सबक मुकम्मल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।